Hello, very good afternoon to all of you. Today I am going to explain about the chapter elastic constants. So, what are the elastic constants that are required to find the deformation in a given stress system? So, these are the factors which are required to find the deformation produced by a given stress system. So, ये चार इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं. वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, another is Poisson ratio, then modulus of rigidity and Bloch modulus. These constants are usually required to find out the deformation or strains या change in volume in a given stress system. So first of all, modulus of elasticity, that is required in case of longitudinal strain to find out. The deformation change in length due to the applied load divided by the original length of the bar is known as longitudinal strain. As we have discussed earlier, suppose this is our bar and we have applied a load. So whatever will be the change in length, that divided by this original length, so that will be my strain. We call it as a longitudinal strain. So or we also call it as primary strain. The ratio of stress to strain within an elastic limit is called the modulus of elasticity. As we have discussed earlier, within a proportional limit, as per Hooke's law, stress is proportional to strain. The ratio of stress upon strain is modulus of elasticity. Now what happened? Then lateral strain, Poisson ratio. Lateral strain, what is that? What happened when we applied a longitudinal force? Suppose this is my bar and I have applied a load. This is a tensile force at both the ends. So what will happen? As I applied this load, there will be a change in length. So there will be elongation. But simultaneously, its lateral dimensions, that is its width as well as its width and its thickness. This is, suppose this is my B. Suppose this is a bar, rectangular bar or square section, you can say. Its length is L. So when we applied a load, there will be a increase in the length. Suppose this is delta L. So there will be a change in the length. But simultaneously what happens? It's this dimension. Suppose this is a elevation. This dimension, this B, suppose this is B initially, this also get reduced, this one, and also its thickness. Suppose this is my thickness, this is T thickness, this is B. So this thickness will also be reduced due to the tensile force, due to elongation. Its length will increase and its width and thickness will
parallelly reduced. So lateral strain, any direct stress produced a strain in its own direction, that is a longitudinal strain, and an opposite kind of strain in every direction. In the direction of length there is a elongation, but as a result of that in lateral dimension, in this case, and इसकी width and its thickness b and t both will reduce, उसमें contraction होगा, compression होगा as a effect of that. So any direct stress produced a strain in its own directions and an opposite kind of strain in every direction at right angles to it. इस p के जो भी perpendicular रहेगा, इसकी thickness और b ये reduce होंगे as a result of this tensile force. So the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is constant for a given material, and this constant is known as Poisson ratio. Poisson ratio क्या आता है? इसकी longitudinal direction में जो strain है, lateral dimension जो strain आएगी, that is longitudinal strain means change in length upon original length, and lateral strain means change in width upon original width, or you can say change in thickness upon original thickness. So this is my lateral strain, this is longitudinal strain. Lateral strain divided by the longitudinal stress, that is Poisson ratio. So Poisson ratio, this lateral upon this. So this ratio lateral strain upon longitudinal strain, ये जो रेशियो है ये किसी भी मेटेरियल का कांस्टेंट होता है, एंड दिस रेशियो वी कॉल इट एज Poisson रेशियो, रिप्रेजेंट बाय 1/m या म्यू. इन बोथ द केसेस हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट्स वैल्यू जनरली वेरीज फ्रॉम 0.25 to 0.42 फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल. इन केस ऑफ रबड़ इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास होती है. Now volumetric strain due to direct stress. Volumetric strain means, what is volumetric strain? Volumetric strain means change in volume divided by the original value, volume. So that is change in volume upon original volume. We call it as a volumetric strain. ये मेरा कोई बार है, there is a tensile force, its length is this, b is width and t is the thickness. So its volumetric strain means change in volume upon original length, represented by EV. So how we will get its a volumetric strain? So let us proceed like this. So longitudinal strain here is E1 is equal to this stress upon strain. Strain means stress upon Young modulus of elasticity. So P1 upon E, and इसी टेंसाइल इन नेचर. lateral strain क्या होगा? इसी strain का, as we know, lateral upon longitudinal is equal to mu. So lateral strain divided by the longitudinal strain, which is P1 upon E, is equal to m upon m या mu, as we had discussed. This is my question. So lateral strain is equal to this multiplied by this. This will be my lateral strain. So lateral strain here is this is 1 upon m, P1 upon E, or you can say P1 upon E is a longitudinal strain which is represented by E1. So longitudinal strain multiplied by Poisson ratio is equal to lateral strain, and it is minus. Why it is minus? Because इसका नेचर elongation का है, ये elongate कर रहा है, but lateral में
उसकी विड्थ डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस रिड्यूस होगी। सो दैट विल बी माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलोंगेशन है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज इन विड्थ है, डिक्रीज इन थिकनेस हो रही है, देयर इज ए कंट्रैक्शन। सो दिस इज अपोजिट टू दिस वन, सो here it is represented by minus. Now this is my lateral strain, so volume V is equal to LBT, length into B into thickness. So change in volume, that is final volume जब change होगा उसमें, तो V plus delta V is equal to change in length, L plus delta L into B plus change in B and T plus change in thickness. So this is my due to stress उसकी वॉल्यूम में फाइनली जो चेंज होगा दैट विल बी दिस। सो नाउ अगर मैं इसमें से L कॉमन लेता हूं देन इट विल बी 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, इसमें से B कॉमन लेता हूं, इसमें से T कॉमन लेता हूं, सो इट विल बी LBT इंटू 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 1 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T। नाउ दिस इज माई V and 1 plus, if I solve this equation it will be 1 plus delta L upon L plus 1 delta B upon B and plus plus plus, that will be the product of this delta L upon L into delta B upon B, delta B upon delta T. So I have not mentioned here because these are the small quantity delta L upon, और उनका product बहुत ही negligible होगा, that's why I have neglected this, the ignoring the product of small quantities. So now V plus delta V is equal to V into this one, delta T upon T. Now here if I solve it, then it will be V plus delta V is equal to V plus V into this one. So here we will cancel each other and finally I will get delta V is equal to this one. So now delta V को अगर मैं V से डिवाइड करूंगा this V को, then I will get this is the delta V upon V is equal to delta L upon L plus delta B upon this. Here this delta V upon V, this is change in volume upon original volume, is equal to EV, that is volumetric strain, and delta L upon L is ये longitudinal strain which is represented by E1, delta B ये E2 width में जो longitudinal strain, this strain in thickness. So EV is equal to E1 plus E2 plus E3, or I can also write it like this, EX plus EY plus ET. So now delta L upon L is equal to E1, which is equal to longitudinal strain जो है that is equal to P upon E, and this is delta B upon B is equal to lateral strain which is opposite to this one, as I calculated here, this one, and this is E3 is also equal to this one, both are negative and multiplied by the Poisson ratio with this one. So now if I put the value of all these, delta 1 plus delta L upon L, delta B upon B, the value here in this equation, I will get delta EV is equal to delta V upon EV is equal to this one. Now I can take P upon E is the common, now I will be finally getting E minus 2 upon M. So volumetric strain EV is equal to P upon E and 1 minus 2 upon M. This is my formula. In case अगर मेरा कोई रेक्टेंगल बार है इस तरह का जिसकी लेंथ L है, एंड दिस इज B एंड दिस इज T, और इसमें दोनों साइड में एक टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, इन दैट केस अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है विच इज EV, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, then it is equal to this stress P upon Young modulus of elasticity
into 1 minus 2 upon m. So 1 upon m is equal to Poisson ratio. So this is my formula volume strain निकालने का in case of uniaxial stress in a bar. Now in case of a circular bar also we can similarly find out like this. V is equal to area into length. Now to change in volume upon original volume is equal to similarly delta L upon L plus here 2 times of delta D upon D, because in this case width and thickness are same dia, so it will be 2 times. If I put delta L upon L is equal to E1 and delta D upon D is E2, which is opposite nature, that's why it is minus P upon ME. So I will get a volumetric strain is equal to delta V upon E is equal to P upon E. I put E here the value and finally I'll get so this is also the same equation. Now volumetric strain due to 3 mutually perpendicular stress system. Here I have discussed कि किसी बार में अगर only one direction में फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, so उस केस में volumetric strain is equal to this. Now in case अगर I have a in all the three directions there is a stress, so either in this direction it is P1, यहाँ पर P2, P3, P2 and here is P3. So in all the 3 x, y, z direction there is a stress. So in that case what will be my volumetrically strain? So for that again I can this is my P1, P2, so it is P3 also. So this is my stress system. Now in that case delta V upon V, which is volumetric strain, is equal to EV is equal to E1 plus E2 plus E3. This is my volumetric strain. Strain in this direction plus strain in this direction plus strain in this direction. तीनों का जो cumulative sum होगा that will give volumetric strain. So as any direct stress produces strain in its own direction and opposite kind of strain in every direction at right angles to it, then longitudinal strain is equal to this. As we have discussed earlier, कोई भी stress अगर आप किसी डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस डायरेक्शन में तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा. It will create also effect in the other direction as well. So as we have discussed, so longitudinal strain in E1, इस डायरेक्शन में जो longitudinal strain होगी that is E1 is equal to, because of this P1 upon E, and longitudinal डायरेक्शन में P1 upon E, and ये जो दोनों stresses हैं P2 and P3, ये when they will try to elongate, so उसका length में effect क्या होगा, they will try to contract it. इनका जो effect होगा इस along x direction, this one direction P1 in this direction, ये अपोजिट रहेगा, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. मीन्स P1 इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड P2 जो है जैसे इनको खींचेंगे, सो एंड इन x एंड y डायरेक्शन इनका इफेक्ट अलोंग दिस P1 विल बी अपोजिट, दैट विल बी अपोजिट. आई मीन
जब ये इसको स्ट्रेच करेगा तो उस डायरेक्शन में ये इलोंगेट हो रहा है, बट ये जो फोर्स है, दिस इज माई P3, ये भी टेंसाइल फोर्स है। तो इस P3 का इफेक्ट अलोंग दिस P1, जैसे ये इसको इलोंगेट कर रहा है, बट ये जैसे इसको खींचेगा तो ये इस तरह से करने की कोशिश करेगा, इस तरह से अपोजिट ये इलोंगेट होने की कोशिश करेगा ड्यू टू P3। तो ड्यू टू दिस P3, इस P1 डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट होगा दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट हिज, और P1 का इफेक्ट इलोंगेशन में आ रहा है, टेंसाइल फोर्स इसका अपोजिट जो है इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो दैट विल बी माइनस। एंड सिमिलरली जो P2 का इफेक्ट है, जो P2 मेरा इधर लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में जो P2 लगा हुआ है, ये P2 भी जब इसको स्ट्रेच कर रहा है, जब ये इसको इधर खींचेगा तो इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो दैट विल आल्सो बी माइनस। सो ये दोनों ही माइनस, इन दोनों का इफेक्ट अलोंग दी लेंथ माइनस होगा, एंड उसमें जो स्ट्रेन होगी दैट विल बी 1/m से उसको मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रेन P2 का अपने डायरेक्शन में P2/E आएगा, तो उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में उसको मल्टीप्लाइड करेंगे पॉइसन रेशियो से। सो P2 का इफेक्ट एंड P3 का इफेक्ट इनके आउट डायरेक्शन में ये होगा, सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इफेक्ट निकालेंगे तो उसको 1/m से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो पॉइसन रेशियो है। सो वी हैव मल्टीप्लाइड इज, and both are negative because effects are opposite. So similarly E2 is equal to, E2 जब हम निकालेंगे P2/E, और इन दिस डायरेक्शन P3 और P1 का इफेक्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो जब इनको खींचेंगे इस डायरेक्शन में, जब इसको खींचेंगे तो इस डायरेक्शन P2 की डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड P3 की वजह से भी जब इसको खींचेंगे तो P2 की डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। P2 इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, बट P3 एंड P1 उसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ P2। सिमिलरली E3 जो इस डायरेक्शन में निकालेंगे ऊपर की तरफ, जब इसको इलोंगेट करेंगे, सो P3 का इफेक्ट उसको इंक्रीज इन दिस डायमेंशन, बट जो P2 जब उसको खींच रहा है तो उस डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो रही है, एंड ऑल्सो P2 जब उसको स्ट्रेच कर रहा है तो उसका इफेक्ट माइनस आएगा, सो दैट विल बी अपोजिट इन नेचर। So this is my E1, E2 and E3. Now what is volumetric strain is equal to delta V/V is equal to summation of all these three strain, E1 plus E2 plus E3. So जब मैं इन तीनों का सम करूंगा, when I combine all these E1 plus E2, then I will get this P1/E minus P1/E minus P1 minus 2 times of P1/ME, this plus P2/E and minus this P2/E, then this P2/E ME and P2/ME. So 2 times of P2/ME plus P3/E minus 2 times of P3/ME. सो जब मैं उन तीनों को कंबाइन करूंगा तो आई विल गेट P1 plus P2 plus P3/E into 1 minus 2/E. I will get this figure, this value. So this is summation of all the three strains, that is volumetric strains को हम dilatation भी बोलते हैं, dilatation
डिलेटेशन या चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल देते हैं. सो नाउ दिस इज माय फार्मूला कि अगर इन केस मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, दैट विल बी P upon E into 1 minus 2 upon M. So this was my formula. This is my formula in case वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है. बट अगर उसके तीनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सेम नेचर का, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस 1 माइनस 2 अपॉन एम जो है इसको P1 P अपॉन ई की जगह P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा इंटू ई. Only difference is that here in place of P1, P is equal to P1 plus P2 plus P3. So this is in case of when there is a stress in three directions. So in that case, volumetric strain is equal to this one. Now upper limit of Poisson ratio. So what is my upper limit? Upper limit of Poisson ratio. So now we have calculated volumetric strain is equal to, which is delta V upon V is equal to E1 plus E2 plus E3, which is equal to 1 minus 2 upon M, and this one, as we have proved it here. Now what happens in case of hydrostatic tension? What is hydrostatic tension means? This is my block. सपोज इस डायरेक्शन में भी P फोर्स लगा मेरा टेंसाइल, इधर भी P लगा हुआ है एंड इधर भी P लगा हुआ है, मीन्स तीनों डायरेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेस है दैट इज सेम. So here P1 is equal to P2 plus P3 is equal to P, and strain will also be same, क्योंकि strain will also be same in the three direction. जब तीनों डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस या फोर्स सेम होगा तो उसका ये भी सेम होगा. सो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा इस जगह पे E1 plus E2 plus E3 is equal to E. So E plus E I will get 3E. And here 1 minus 2M is P plus P plus P, I will get 3P upon E. Now my E is equal to strain, that is strain in any direction, that is equal to stress upon E. So I will get this. So 3P and 3P will cancel each other. Now finally I will get this one.
I can also write it in form of E. So EE is equal to 3. Instead of, I can also write it as, I can also write 3P upon E is equal to 1 upon 2 upon M is equal to 3P upon E. So here 1 minus 2 upon M is equal to 1. So 1 minus 2 upon M is equal to 1. Then 2 upon M is equal to 0, which is not possible. So here E is equal to P into 1 minus 2M. So this is positive. These are the positive values. So 1 minus 2M has to be positive. So for this to be positive means 2 upon M की जो value है that has to be either less than 1 or at the maximum it will be equal to 1. अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो हम अगर मान लीजिए 1 अपॉन 2 अपॉन M इज इक्वल टू 0 करते हैं, सो M इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0.5. So no material is known to have a higher value of Poisson ratio. Only rubber approaches this value. ज़्यादातर जो वैल्यू है 0.25 से 0.42 तक इसकी वैल्यू है. रबड़ के केस में 0.5 के आसपास ये वैल्यू जाती है. So this is my upper limit of Poisson ratio. Now there is a question. Example, a steel tube block of 50 mm side is subjected to a force of 10 kilonewton tensile, 12.5 kilonewton compressive and 7.5 kilonewton tensile along x, y and z direction. So this is my cube. ये कोई क्यूब है जिसमें तीनों डायमेंशन 50 mm की हैं. This is also 50 mm and in this direction, in the direction of x 10 kilonewton tensile force है and in y direction compressive force है 12.5 kilonewton का and in the z direction 10.5 kilonewton tensile force है. So determine the change in volume of the block. इसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स ईवी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. दिस इज द फार्मूला. सो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो फॉर दैट मुझे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा एंड देन आई विल मल्टीप्लाइड विद this volume. So I will get change in volume. So change in volume is equal to original volume into sum of the strain in the three directions. So सबसे पहले I will calculate is strain. तीनों डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन निकालूंगा. स्ट्रेन निकालने के लिए पहले मुझे स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. सो एरिया ऑफ दिस इज, इसका एरिया क्या आएगा 50 इंटू 50. स्ट्रेस निकालने के लिए एरिया की जरूरत पड़ेगी. आई हैव, सो दैट विल बी 2500 mm स्क्वायर. नाउ स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, इन दिस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा एक्स डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन, इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा, एरिया से डिवाइड करूंगा. सो आई विल गेट दिस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये टेंसाइल होगा यहाँ पर. एंड then stress in the y direction is equal to 12.5 into 10 raised to power 3 into divided by area. ये जो
12.5 किलो न्यूटन है कि ये कंप्रेसिव फोर्स है, इसको इसके एरिया से डिवाइड करूंगा, सो मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेस मुझे मिल जाएगी पी वाई, एंड दिस इज माइनस, ये कंप्रेसिव होगी क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स है यहाँ पर। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में जब निकालूंगा इट विल बी 7.5 किलो न्यूटन अपॉन एरिया, सो एरिया इज सेम 7.5 अपॉन दिस वन, एंड दिस इज टेंसाइल इन नेचर क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है इधर। देन अब मैं उसमें स्ट्रेन निकाल सकता हूं, ई एक्स इज इक्वल टू एज वी नो कि नाउ दिस इज माई ई एक्स स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, सो दिट विल बी, जो इस डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन निकालूंगा दिस इज पी एक्स अपॉन ई, so px upon e means this stress divided by the young modulus of elasticity. now ये दोनों अब वाइज डायरेक्शन में जो ये है ये इसको कंप्रेस कर रहा है, ये सेम ये फोर्स इधर लगा है, तो जब ये इसको कंप्रेस करेगा वाई डायरेक्शन में 12.5 किलो न्यूटन दोनों साइड में कंप्रेस करेगी, तो एक्स डायरेक्शन में वो इलोंगेट होगा। इन दोनों ही डायरेक्शन में जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो उस कंप्रेशन का इफेक्ट इस डायरेक्शन में जो कि एक्स डायरेक्शन में जिसमें हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं उसका वो उसको फर्दर इंक्रीज करेगा, सो उसका इफेक्ट आएगा पॉजिटिव क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट विल बी वाई डायरेक्शन में जो उसकी स्ट्रेन है विच इज इक्वल टू पी वाई अपॉन ई, उसको पॉइसन रेशियो से मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट इज 1 अपॉन एम से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में जो जेड में जब ये इसको खींचेगा इन द जेड डायरेक्शन टेंसाइल फोर्स जब इसको खींचेगा, तो जब ये खींचेगा तो एक्स डायरेक्शन में इसकी लेंथ रिड्यूस होगी। व्हेन वी स्ट्रेस इन द जेड डायरेक्शन में 7.5 किलोमीटर फोर्स लगेगा, जब हमको इस डायरेक्शन में उसको खींचेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो देयर विल बी कंट्रैक्शन होगा, उसकी लेंथ शॉर्टन होगी, सो उसका ओवरऑल इफेक्ट इसके इफेक्ट से अपोजिट होगा, सो दैट विल बी पी जेड अपॉन एम ई। सो जब मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा पी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन ई, पी वाई को दिस अपॉन, नाउ 1 अपॉन एम इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो ही हैज ऑलरेडी गिवन विच इज इक्वल टू 0.3, so this 1 upon m is equal to 0.3, so 0.3 into py upon e minus p2 into Poisson ratio upon e, so I will get this value. So this is my strain in the x direction. Similarly y डायरेक्शन में जब मेरा स्ट्रेन निकालूंगा सो दैट विल बी पी वाई अपॉन ई, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स कर रहा है वाई डायरेक्शन में जो है 12.5 किलोमीटर जो फोर्स है दिस इज माई 12.5 किलोमीटर फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स। सो दिस कंप्रेसिव फोर्स 12.5 किलोमीटर उसको कंप्रेस कर रहा है इन द वाई डायरेक्शन। जब कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेशन को कंट्रैक्शन को हम माइनस लेते हैं, तो दैट विल बी पी वाई अपॉन ई। नाउ इस वाई डायरेक्शन में जब हम इसको खींच रहे हैं व्हेन वी, जब ये एक्स डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का जो इफेक्ट होगा इसकी वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये जब इसको खींचेगा तो क्या होगा, इसकी जो विड्थ और थिकनेस है अपोजिट डायरेक्शन में वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से वाई डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन इफेक्ट आएगा, उसकी लेंथ विड्थ कम होगी, सो दैट विल बी आल्सो माइनस पी एक्स अपॉन ई एंड मल्टीप्लाइड बाय द पॉइसन रेशियो, सो दैट विल बी दिस। नाउ ई वाई डायरेक्शन में व्हेन
7.5 किलोन्यूटन जो जेड टेंसाइल स्ट्रेस है, जब हम इसको व्हेन वी अप्लाई टेंसाइल फोर्स इन द जेड डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, इट विल फर्दर, इसका जो वाई डायरेक्शन में जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी जस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इट, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, इट विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द दिस विड्थ इन द वाई डायरेक्शन। जब हम इसको खींचेंगे, व्हेन वी इसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वाई डायरेक्शन में ये उसका इफेक्ट इसकी विड्थ को शॉर्टन करेगा, दैट इज आल्सो माइनस। So this will be strain in the y direction. Similarly, if I have put the value, corresponding value py, px and p, so I will get this one. So my ey will be this one. मतलब this is ey value. Now this is value of the Ez, strain in the z direction. Strain in the z direction means ये z direction है मेरा. So in the z direction, ये 7.5 किलो न्यूटन जो है ये इसको इलोंगेट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, पी जेड अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन ई। नाउ जो पी एक्स का इफेक्ट है वो क्या होगा, जब हम इसको इलोंगेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से इसका ये वाला जो है वो डायमेंशन कम होगा। जब ये इलोंगेट होगा तो इसका ये डायमेंशन कम होगा, इसका विड्थ इसकी कम होगी, थिकनेस कम होगी, तो उसका इफेक्ट जो है पी एक्स का इफेक्ट इधर नेगेटिव आएगा। सो पी एक्स अपॉन एम ई मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन रेशियो। एंड सिमिलरली जब ये 12.5 किलोमीटर जो कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है बोथ डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो उसका इफेक्ट ये होगा, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये बढ़ेगा, इसका इन द जेड डायरेक्शन उसका इलोंगेशन होगा। क्योंकि किसी बॉडी को जब हम बोथ साइड से कंप्रेस करेंगे, मान लीजिए ये है, ये कंप्रेसिव और ये कंप्रेस है, तो ये इस डायरेक्शन में उसकी इलोंगेशन होगा। तो दिस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जेड डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा, सो दैट विल बी माई पॉजिटिव। सो पी वाई अपॉन एम ई, ये मेरा स्ट्रेंथ जेड डायरेक्शन में आएगा, ये पॉजिटिव, बाकी ये माइनस एंड ये प्लस। सो दिस विल माई फार्मूला। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग, देन आई विल गेट दिस वन। एंड फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी विच इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया तीनों का, आई विल सम अप करेंगे तीनों को, सो आई विल गेट दिस वैल्यू, दिस इज 0.8 अपॉन ई। सो 0.8 अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन ई वी। वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू, because all the side are 50 mm, so volume is equal to 50 cube. So 50 cube, this is why volume is equal to EC. Now delta V upon is equal to 0.8 upon E. So delta V is equal to 0.8 into 50 raised to the power 3 divided by E. So value of E is equal to 2 into 10 raised to the power 5. इससे मेरा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.5 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक mm, सॉरी। नाउ शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ उसको ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। व्हाट हैपन, जब हम शेयर फोर्स लगता है तो उसकी वजह से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। सो जैसे विद इन द हुक लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिमिलरली shear stress is also proportional to shear strain within the elastic limit. So this also obeys the Hooke law. So this shear modulus is
express the relation between shear stress and shear strain, which says that with an elastic limit, shear stress, which is represented by small q, is proportional to shear strain, which is represented by phi. So q stress, shear stress is proportional to shear strain. So q is proportional to phi. This is my shear stress, this is my shear strain. So there is a constant of proportionality that is represented by n. So this constant of proportionality is equal to q upon phi. So q upon phi is equal to n. This constant जो है इसको हम बोलते हैं shear modulus या modulus of rigidity और modulus of transverse elasticity. इस n को कुछ बुक्स में c और c भी लिख देते हैं या g भी लिख देते हैं. So here I have written n. So this is my shear modulus. Now this q upon phi is equal to n, where n is the modulus of rigidity, also denoted by CRG, and phi is a shear strain, and it is in radian, also denoted by gamma. Some books में इसको gamma भी लिख सकते हैं, like this. So complementary shear stress क्या होता है? What is complementary shear stress? What happens? Suppose ये मेरा एक क्यूब है, उसका प्लेन में है, 2 डायमेंशन में. दिस इज माई ABCD इज ए रेक्टेंगुलर, उसका फेस आएगा. एंड दिस ABCD यहाँ पर कोई स्ट्रेस लगा है, मेरा शेयर स्ट्रेस Q लगा हुआ है. दिस Q एंड दिस इज Q. What happens? Because of this shear stress which is acting on AB, this is like this. ये Q जो लगा हुआ है वो इस सरफेस पे लगा हुआ है. सो मान लीजिए ये मेरा जो थिकनेस इन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर द पेपर, ये 1 यूनिट है. दिस इज 1. सो व्हाट विल हैपन? इसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट विल बी Q into this AB into 1. So shear stress upon area. So ये मेरा यहाँ shear force आएगा. अगर मैं इसका यहाँ पर मोमेंट लूंगा, मान लीजिए, so that moment जो यहाँ पर फोर्स आएगा, this into AB into unit thickness perpendicular of the paper, उसका अगर मैं यहाँ पर इसके प्लेन पे यहाँ मोमेंट लूंगा, so that will be into, उसको हम AD से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो मेरा ये मूवमेंट आ जाएगा, एक कपल जनरेट करेगा. ये दोनों जो शेयर स्ट्रेसेस है वो इस डायरेक्शन में एक कपल क्रिएट करेगा. टेंडेंसी ऑफ दिस इज जस्ट टू रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो क्योंकि ये ब्लॉक मेरा इक्विलिब्रियम में है, सो अगर ये कपल रहेगा तो देयर हैज टू बी ए काउंटर बैलेंसिंग कपल, अदरवाइज दिस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उसके लिए मुझे काउंटर बैलेंसिंग एक कपल लगाना पड़ेगा. सो दैट विल बी, उसके लिए क्या होगा, मेरा एक कपल इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, सेम कपल, अदरवाइज ये रोटेट हो जाएगा, इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट कपल, उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रेस लगेगी इस डायरेक्शन में, जो कि उसका नेचर इस तरह से रहेगा, ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा. देयर हैज टू बी ए शेयर स्ट्रेस, देयर हैज टू बी ए शेयर फोर्स. एक कपल यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा,
मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्यू डैश वो लगा हुआ मेरा, विच इज सेम है। सो दिस कपल क्लॉकवाइज कपल इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कपल, दिस क्यू डैश इज इक्वल टू, इसकी वजह से जो कपल आएगा क्यू डैश ये जो लगा हुआ है इनटू ये क्या है ए डी और बी सी, आई कैन से बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो मैं इसको बी सी भी कह सकता हूँ और ए डी भी कह सकता हूँ। तो ये एक्टिंग इस सरफेस पे कर रहा है, ये जो मेरा सरफेस है उस पर ही कर रहा है। तो Q इंटू ए डी या बी सी इंटू इसका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी आर ए डी, दिस विल एक्ट हेयर, एंड इसका जो ये डिस्टेंस होगा दिस विल, क्योंकि इस कपल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, दिस विल बी दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू आइदर सी डी और वी कैन से ए बी। So AD will cancel each other and AB will also cancel each other. I will get Q is equal to Q dash। मतलब ये हुआ कि जो यहां पर जो स्ट्रेस आएगी Q dash that is also equal to Q। It means इस तरह का स्ट्रेस सिस्टम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इसको इक्विलिब्रियम में, इट हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम फॉर दैट एक कॉम्प्लीमेंट्री जो ये इस तरह का मूवमेंट क्रिएट कर रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसा एक लगना चाहिए। फॉर दैट सेम अमाउंट का यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसका इफेक्ट इस तरह का रहेगा जो कि इसको काउंटर बैलेंस करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ दैट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस Q। सो दिस विल बी लाइक दिस। सो इसमें ये हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी शेयर स्ट्रेस जब ये एक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो ये दोनों या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये ऐसे आ रहा है, ये इसके आ रहा, या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जा रही है और इधर जा रही है। इट कैन नॉट बी नेवर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान लीजिए इधर जा रही है तो कोई इधर आए, या अगर इधर है तो इधर नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी लाइक दिस। सो आइदर दोनों ट्राई टू मूव टुवर्ड ईच अदर और दे विल मूव in the opposite direction. So complementary stress, this is stress Q dash is known as the complementary shear stress, and consequently we have the rule as a shear stress in a given direction cannot exist without a balancing shear stress of equal intensity in a direction at right angles to it. This is what which I have explained earlier. So this is a state of, इसको हम complementary stress shear stress बोलते हैं। So what is the state of simple shear? स्टेट ऑफ सिंपल शेयर उसको बोलते हैं कि जब हमारा ब्लॉक पे खाली शेयर स्ट्रेस लगी हुई है एंड देयर इज नो अदर स्ट्रेस अपार्ट फ्रॉम दिस शेयर स्ट्रेस, वी कॉल इट एज ए सिंपल शेयर, कि वहां पर ओनली शेयर स्ट्रेस लगी हुई है, उसको सिंपल शेयर बोले। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन विच नो अदर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिंपल शेयर। जैसे कंसीडर ए यूनिट थिकनेस परपेंडिकुलर द पेपर, ये मेरा स्ट्रेस है, इस पे कोई टेंसाइल फोर्स या कोई कंप्रेसिव फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसमें ओनली शेयर स्ट्रेस लगी हुई है इस ब्लॉक पे, यहाँ क्यों लगी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है, तो इसको हम स्टेट ऑफ सिंपल शेयर बोलेंगे। नाउ बेसिकली इससे हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इससे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेस सिंपल शेयर का केस है इस तरह से जिसमें कोई टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा हुआ है, सो इन दैट केस मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है हमारा, ये भी बी है इसकी थिकनेस, दिस इज बी एंड दिस इज आल्सो बी, सो उसके डायगोनल पे जो स्ट्रेस आएगी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू दिस। जो यहां इसका मान लीजिए ये डायगोनल होगा AC और इसका जो BC डायगोनल होगा उस पे जो स्ट्रेस आएगी
वो इसके इक्वल होगी। तो एक उसकी डायगोनल में, एक अलोंग दैट डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, इन द अपोजिट डायगोनल, दूसरी डायगोनल में कंप्रेसिव आएगी। वो हम कैसे करेंगे? सपोज ये दोनों शेयर स्ट्रेस, दोनों का इफेक्ट जो है इधर ऊपर की तरफ है। मान लीजिए इनको अगर हम ऐसे देखें, विजुलाइज करें, तो दिस शेयर स्ट्रेस एंड दिस शेयर स्ट्रेस बोथ, ये इसको इधर स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि इसका इस डायगोनल में जो ये इसके अपोजिट में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, क्योंकि ये दोनों दे आर ट्राइंग टू पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। टेंसाइल इसका इफेक्ट आएगा इन दोनों का। एंड अगर इसको हम इधर देखें, अलोंग द एसी अगर हम देखो, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। ये शेयर स्ट्रेस एंड दिस शेयर स्ट्रेस, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का इफेक्ट अगर हम देखें तो इस तरह का रहेगा। तो ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अलोंग दिस डायगोनल देयर विल बी ए कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। नाउ मान लीजिए मैंने ये वाला जो इसका पोर्शन है, दिस पोर्शन मैंने उठा लिया, आई कंसिडर दिस वन। मान लीजिए मैंने ये ब्लॉक ले लिया इसका ABC, एंड उसका मैं इक्विलिब्रियम चेक करना चाहता हूं, तो व्हाट विल हैपन? दिस इज माय ABC, इधर शेयर स्ट्रेस Q है एंड यहां पर Q स्ट्रेस है। यहां पर अलोंग BD जो डायगोनल है, ये BD डायगोनल के अलोंग जो स्ट्रेस आएगी विच इज इक्वल टू P, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फॉर दैट दिस Q इज एक्टिंग हेयर, दिस Q इज एक्टिंग हेयर। ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी? क्योंकि ये B है एंड दिस B, सो दिस विल बी B√2 एज पर पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू this side, AC is equal to, this is B, this is B, so B square plus B square root, it is equal to √2 B, so B√2 इसकी AC की लेंथ होगी। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम करूं, इसको मैं रिजोल्व करूं, रिजोल्विंग परपेंडिकुलर टू द डायगोनल, इस डायगोनल के परपेंडिकुलर अगर मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं, सपोज मान लीजिए ये Q है, तो इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, दिस Q, इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, और ये इधर लग रहा है। अगर मैं मान लीजिए इसका कंपोनेंट इस डायगोनल के परपेंडिकुलर लूंगा, तो दिस विल बी दिस, एंड इसको मैं जब रिजोल्व करूंगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी दिस। सो नाउ फोर्स यहां पर क्या है? ये बेसिकली इस तरह से है। सो हेयर जो इसका इफेक्ट आएगा दैट विल बी Q इंटू दिस B, एंड जो इसकी थिकनेस है परपेंडिकुलर टू द पेपर दैट इज 1 यूनिट थिकनेस मैंने कंसीडर किया है। तो यह जो सरफेस एरिया आएगा दिस BC, B इंटू दिस 1 जो है दैट विल बी सरफेस एरिया। दिस इज माई B, और इसके जो ये डायरेक्शन मैंने लिया है दैट इज 1 यूनिट। सो B इंटू 1 इंटू दिस इज द सरफेस एरिया इंटू Q इज द फोर्स, ये शेयर फोर्स आ जाएगा। सो क्योंकि ये सेम लगेगा यहां पर और यहां पर, सो दैट मीन्स बिकॉज सेम फोर्स विल बी हेयर, सेम फोर्स विल बी हेयर, so this is 2 times of this, so Q into B into 1 into ये एंगल जो है this is equal to 45 डिग्री। सो दिस इंटू, अगर हम इसको इधर रिजोल्व करेंगे दैट विल बी cos 45 डिग्री, एंड आई विल मल्टीप्लाई इट 2,
दैट शुड बी इक्वल टू दिस P। ये P फोर्स यहाँ कितना आएगा, दिस स्ट्रेस इनटू इसका एरिया, एरिया विल बी दिस लेंथ B√2 इंटू 1। विद दैट जो मैंने P वैल्यू निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू P। तो Q जो यहाँ पर मेरा आएगा मीन्स P इज इक्वल टू Q। यहाँ पर जो स्ट्रेस ये आ रही है P, जो मैंने ये P लिया है दैट इज इक्वल टू दिस Q एंड दैट इज टेंसाइल इन नेचर। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस डायगोनल AC के परपेंडिकुलर में जो स्ट्रेस आएगी दैट विल बी इक्वल टू Q। ये जो शेयर स्ट्रेस है कि अगर ये Q है तो यहाँ भी Q आएगा इस डायरेक्शन में। AC के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस आएगी मीन्स अलोंग दिस BD जो स्ट्रेस आएगी दैट विल बी टेंसाइल। सो दिस विल बी माई P इज इक्वल टू दिस Q। सो दिस Q, अगर यहाँ Q शेयर स्ट्रेस है, यहाँ भी Q है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस वन विच इज इक्वल टू Q और दिस विल बी टेंसाइल इन नेचर। नाउ अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q आएगा एंड सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन प्लेन BD। जब हम सिमिलरली इसको रिजोल्व करेंगे सिमिलरली अगर हम मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन में उसको निकालना चाहें इस ब्लॉक को कंसीडर करके तो इधर कंप्रेसिव फोर्स आएगा। जैसे ये P इज इक्वल टू Q है तो इधर में भी रिजोल्व करने से P इज इक्वल टू Q आएगा एंड दैट नेचर ऑफ दैट विल बी डिफरेंट। इधर टेंसाइल है तो इधर कंप्रेसिव आएगा, ये कंप्रेसिव आएगा बट ये आएगा सेम अमाउंट के लिए। सो दिस विल आल्सो बी सेम। So rule is that a state of simple shear produces pure tensile and pure compressive stress across plane inclined at 45 degree to those of pure shear and intensity of these direct stress are equal to the intensity of the pure shear stress। Means अगर मान लीजिए मेरा ये कोई ब्लॉक है जहां पर shear stress Q लगा हुआ है और ये Q लगा हुआ है, सिंपल शेयर का केस है, उसमें कोई टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा हुआ, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वहां पर जो स्ट्रेसेस आएंगी वो इसकी इक्वल रहेंगी और उसके एक प्लेन में टेंसाइल आएगी दैट एक प्लेन में कंप्रेसिव आएगा। अब इस प्लेन में जो है इस डायरेक्शन में टेंसाइल लगेगा और उसकी वैल्यू भी Q के इक्वल ही होगी और ये जो डायगोनल है इस डायगोनल में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू Q। सो इन केस ऑफ सिंपल शेयर के केस में अलोंग द डायगोनल जो स्ट्रेसेस आएंगी ऑन वन डायगोनल इट इज टेंसाइल, अनदर डायगोनल इट विल बी कंप्रेसिव और उसकी वैल्यू उसकी इक्वल होंगी। तो दिस इज माय रूल। A state of simple shear produces pure tensile and compressive stress across plane inclined at 45 degree to those of pure shear and the intensity of these direct stresses are equal. Now linear strain of diagonal due to shear। लीनियर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? सपोज ये हमारा केस है ABCD जिसपे ये शेयर स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, तो इस शेयर स्ट्रेसेस की वजह से व्हाट विल हैपन, इसका जो डिस्टोर्टेड शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये दोनों इसको इधर इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे अलोंग दिस डायगोनल AC
ये जो दोनों स्ट्रेसिस हैं, ये इसको इधर खींचेगी, ये इसको इधर खींचेगी। सो इसका डिस्टोर्टेड शेप कुछ इस तरह से रहेगा। सो दिस इज माय डिस्टोर्टेड शेप। सो हियर जो इसमें shear स्ट्रेन आया, जो एंगल चेंज होगा इसका, जो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री था, ये इधर आके इतना इसमें चेंज हुआ है। एंड सिमिलरली ये जो यहाँ हॉरिजॉन्टल था, इसमें भी इतना चेंज हुआ है। सो दिस विल बी 5/2 एंड 5/2। सपोज जो दोनों एंगल जो 90 डिग्री का है, इसमें ओवरऑल कितना चेंज हुआ, दैट इज दिस प्लस दिस। सो 90 माइनस ये एंगल मेरा, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, सो x1 प्लस x2। सो 90 माइनस दिस सम ऑफ दिस एंड दिस, इतना एंगल मेरा फाइनली बचा है। तो टोटल इसमें जो shear स्ट्रेन हुआ, दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये एंगल फाई। सो फाई इज हियर माय shear स्ट्रेन। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन में दूं, तो मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ 5/2 की बजाय मैं पूरा 5 ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि खाली ये साइड मेरा टिल्ट हुआ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ कि इसमें कोई मेरा चेंज नहीं हुआ। फॉर सिंप्लीफिकेशंस इसको मैं एज इट इज हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ, और इन दोनों इफेक्ट दिस प्लस दिस में कंबाइंड इफेक्ट यहाँ ले लेता हूँ। 5, अगर ये 5 है तो ये 5 है, तो मैंने ये शेप यहाँ पर आई हैव टेकन इट। सो नाउ माई दिस इज ए बी पहली लेंथ थी, उसके बाद ये डिस्टोर्टेड में ये ए बी होगा, एंड दिस इज माई shear स्ट्रेन। तो इसको मैं एज ए आर्क भी मान सकता हूं, क्योंकि ये बहुत कम है। सो दिस फाई इज इक्वल टू दिस बी बी डैश अपॉन दिस ए बी इज इक्वल टू 5। So my this phi is equal to this angle is equal to this plus this upon this, क्योंकि आर्क है, so theta is equal to L upon R होता है। This theta is equal to this length of the arc upon this radius. So in this figure, the shear strain phi is extremely small. So we assume as BB an arc with A as a center and AB as a radius. Then phi is equal to BB side upon AB. या मैं उसको जितना ये BB है उतना CC डैश है, CC डैश अपॉन CD भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बोथ आर सेम, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट सेम, दिस साइड एंड दिस साइड इज सेम। सो आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। नाउ लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल, ये जो डायगोनल है, ये मेरा इनिशियली इसमें लीनियर स्ट्रेन कैसे हुआ, उसके लिए कैसे निकालूंगा। ये इनिशियली इसका लेंथ AC था, इनिशियल लेंथ इज AC। लो लीनियर स्ट्रेन मीन्स डायगोनल का लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, दिस AC चेंज इन लेंथ, इसका लेंथ इन चेंज इन लेंथ अपॉन इसका ओरिजिनल लेंथ, वो मेरा लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल आ जाएगा। सो इनिशियली जब ये डिस्टोर्टेड हुआ, तो ये इस शेप में ले लिया इसको मैंने। ये इसको जब मैंने कंसीडर किया, तो फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, सपोज यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ F पॉइंट पे वो काटता है उसको। सो नाउ मैं इस AC को नाउ दिस इज वेरी स्मॉल, आई कैन एज्यूम कि मैं A सेंटर से ये आर्क मैंने ड्रॉ किया है, CF इज जस्ट लाइक एन आर्क। सो दिस साइड, ये जो AC है, दिस AC इज इक्वल टू दिस AF। आई कैन राइट AC जितना है उतना ही मेरा AF, इसको मैं मान सकता हूं, ये आर्क है। सो दिस AC इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं इस लेंथ में इतना मेरा चेंज इन लेंथ हुआ, दिस मच इज द चेंज इन लेंथ। सो दिस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय दिस ओरिजिनल लेंथ, आइदर AC और दिस साइड, वो मेरा लीनियर स्ट्रेन इसमें बताएगा। सो हियर FC डैश अपॉन AC, and this FC dash is equal to, ये जो FC dash है
दिस एफ सी डैश जो कि चेंज इन लेंथ हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन बताएगा. सो एफ सी डैश दिस इज इक्वल टू दिस साइड ये एंगल मेरा 45 डिग्री का आएगा. वाई इट इज 45 डिग्री? क्योंकि माई दिस एंगल इज 90 एंड उसको मैं ए सी और ए एफ को मैं काफ़ी स्मॉल है तो मैं इस एंगल को 45 डिग्री मान सकता हूं. सो ये भी 45 होगा. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री. सो सी सी डैश का जब मैं यहाँ कंपोनेंट लूंगा इसको रिजोल्व करूंगा अलोंग दिस, सो सी सी डैश इंटू कोस 45 डिग्री हो जाएगा एफ सी डैश की वैल्यू दिस. एंड this AC is equal to, what is AC? AC is equal to CD. This is, if I draw it, this is my CD. So CD upon AC is equal to, this is 45 degree. CD upon AC is equal to cos 45 degree. So CD is equal to AC into cos 45 degree. AC is equal to CD upon cos 45 degree. So this is CD upon cos 550. Cos 550 will jump here. So it will be cos square 45 degree and CC upon CD. Now cos square 45 degree is equal to 1 upon 2 and CC dash upon CD. So CC dash upon CD is equal to क्योंकि मेरा ये बी बी डैश दिस साइड अपॉन दिस साइड ये मेरा क्या बताएगा? ये बताएगा shear strain, this angle phi. So phi is shear strain. Shear strain is equal to either BB dash upon AB, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं जितना BB dash है the same value is CC dash. So CC dash upon CD. I can also write it. So इसको मैं phi बोल सकता हूं, phi. So E is equal to phi by 2. I have get it. Now this phi is equal to phi. This is shear strain. So shear strain upon shear stress. Shear strain upon shear stress. या shear stress upon shear strain is equal to modulus of rigidity. So phi क्या हो जाएगा? Q upon N. So phi की जगह Q upon वेल मैं पुट करूंगा तो I will get Q upon 2N. So E is equal to Q upon 2N. Means जो लीनियर स्ट्रेन आएगा उसके डायगोनल का that will be equal to Q upon 2N. In this case, this is my case. इसमें जो AC डायगोनल है इसका जो लीनियर स्ट्रेन होगा that will be equal to Q upon 2N. Relation between E and N. So now linear strain of a diagonal, as I have just calculated, it is phi by 2 and Q upon 2N. This is my equation number 1.
एंड उसमें हमने एक चीज और भी अभी जस्ट देखी है, एज द स्टेट ऑफ सिंपल स्टेट प्रोड्यूसेस टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द डायगोनल प्लेन्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच डायरेक्ट स्ट्रेस न्यूमेरिकल इक्वल टू क्यू, सो अलोंग एसी देयर इज ए टेंसाइल स्ट्रेस। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ये जो मेरा है इसकी वजह से क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन मेरा Q अपॉन 2n आ गया, बट दैट लीनियर स्ट्रेन जो है वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में AC के डायरेक्शन में, दिस AC दिस इज माई, अगर मैं इसको डायगोनल दोनों को मिला दूं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव आएगी, क्योंकि ये दोनों उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, इधर टेंसाइल आएगा इधर कंप्रेसिव आएगा। जस्ट क्वाइट वी हैव प्रूव्ड इट कि इस तरह का सिंपल शेयर का केस है तो उसके डायगोनल पे जो स्ट्रेसेस आएंगी दैट विल बी इक्वल टू दिस, ऑन वन डायगोनल दिस विल बी टेंसाइल, ऑन द अदर डायगोनल इट विल बी कंप्रेसिव। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा वो यहाँ पर भी Q आएगा और यहाँ पर भी Q आएगा, ओनली थिंग इज दैट इधर ये टेंसाइल आएगा इधर कंप्रेसिव आएगा। अब मैं अगर AC डायगोनल का इस डायगोनल का लीनियर स्ट्रेन अगर निकालना चाहूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू इस Q की वजह से जो भी आएगा Q अपॉन E प्लस ये जो कंप्रेसिव आ रहा है इधर से, ये कंप्रेसिव आने की वजह से भी जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो इस कंप्रेशन की वजह से ये फर्दर इलोंगेट होगा, तो दैट विल बी प्लस Q अपॉन E जो इस डायरेक्शन में आएगा इस कंप्रेशन की वजह से उसका पॉइसन रेशियो से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो ये मेरा लीनियर स्ट्रेन इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, AC के डायरेक्शन में। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन E and 1 plus 1 upon m. But just we have proved it कि E is equal to Q upon 2n, लीनियर स्ट्रेन जो डायगोनल कहाँ भी हमने निकाला था दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 2n। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 2n। नाउ Q and Q cancel each other and E is equal to 2n into 1 plus 1 upon m, or also I can write it E is equal to 2n and 1 plus 1 upon m। सो ये मेरा फार्मूला बन गया जो कि इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिलेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। सो E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन m। सो दिस इज माई फार्मूला नंबर 1। Bulk modulus. What is bulk modulus? Bulk modulus, what it says, in case there are like stresses, अगर मान लीजिए like stresses हैं, एक ब्लॉक में है like एंड सेम अमाउंट की स्ट्रेसेस लगी है, देयर इज ए ब्लॉक एंड इसकी तीनों डायमेंशन L है और तीनों ही डायरेक्शन में कंप्रेसिव सेम स्ट्रेस लगी है, इधर भी P लगी है, इधर भी P लगी है, इधर भी P लगी है, और वो लाइक भी है, ये कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है, ये भी कंप्रेसिव है। इन दैट केस द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन, कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसकी जो रेशियो होगी दैट वी कॉल इट एज ए बल्क मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बॉडी. सो बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. डायरेक्ट स्ट्रेस हमारी P है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV. सो दिस इज बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू P अपॉन EV. नाउ रिलेशन बिटवीन E एंड K अगर हम मुझे निकालना है, सो E एंड N का अभी हमने रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू 2N 1 प्लस 1 अपॉन प्लस M. नाउ सिमिलरली अगर E और K का रिलेशन निकालना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. नाउ इन दैट केस, क्योंकि ये सेम तीनों डायरेक्शन में सेम शेयर स्ट्रेस है, देन स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन इज इक्वल टू, किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आएगी, P अपॉन E. इधर जो भी इफेक्ट आएगा ये इसको कंप्रेस कर रहा है, इधर ये इसको कंप्रेस करेगा, बट इसकी वजह से, इस P की वजह से इसकी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन को पहले कंसीडर कर रहा हूँ, इधर ये माइनस आएगा, प्लस इसकी वजह से जो आएगा दैट विल बी, ये इलोंगेट होगा. सो P अपॉन ME, और इसकी वजह से भी, इस P की वजह से भी ये इलोंगेट होगा. सो P अपॉन ME. सो ये मेरा स्ट्रेन इस डायरेक्शन में आएगा, और सिमिलरली ये स्ट्रेन तीनों ही डायरेक्शन में इस तरह से आएगा. सो अगर मैं इसको कॉमन लूं, सो माइनस P अपॉन E प्लस 2 टाइम्स ऑफ P अपॉन ME. सो अगर मैं P अपॉन E को बाहर निकालता हूं, सो आई विल गेट 2 अपॉन M माइनस 1, या अगर मैं इसको माइनस भी कह सकता हूं, सो P अपॉन M इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन M. ये कंप्रेसिव है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट ये तीनों ही डायरेक्शन में सेम रहेगा. सो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, 3 टाइम्स ऑफ this one. So this is linear strain in each direction. This will be this change in length upon original length. Now volume is equal to L cube, because all the three sides have same length L. So volume is equal to L cube, and change in volume delta V is equal to, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, so 3L square into delta L आ जाएगा. ये डेल्टा V को बोथ साइड हम इसको डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा V विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा L इज इक्वल टू 3L स्क्वायर. सो दिस, नाउ डेल्टा V को जब V से डिवाइड करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस. सो मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L अपॉन L, एंड डेल्टा L अपॉन L क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L अपॉन L. दिस इज ये स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शंस. नाउ एक डायरेक्शन में जो मेरा आ रहा है वो P अपॉन E इंटू, उसको 3 टाइम्स से जब मैं मल्टीप्लाइड, व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट, सो आई विल गेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. दिस इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लाइक स्ट्रेसेस हैं इन एनी बॉडी, तो उस केस में बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू direct stress divided by the volumetric strain. So direct stress here is Q P. ये P मेरा direct stress है divided by the volumetric strain. Volumetric strain जो है वो मेरा 3P upon E is equal to this. So now this and this cancel each other. So E will jump here. So E is equal to 3K into 1 minus 2 upon M, या E is equal to 3K 1 minus 2 upon M. So this is my another formula जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस की रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा है. नाउ अगर हम इन तीनों में रिलेशन निकालना है E, N, K एंड M,
सो कैसे निकालेंगे? सो E इज इक्वल टू 2n 1 प्लस 1 अपॉन m एंड E इज ऑल्सो इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 अपॉन m। अगर मुझे इसमें से 1 अपॉन m की वैल्यू निकालनी है तो E को अगर एलिमिनेट किया, दिस इज इक्वल टू दिस वन, सो वो कैसे निकलेगी? सो सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, इसको मैं जब दिस विल बी 2n प्लस 2n इंटू 1 अपॉन m इज इक्वल टू 3k माइनस 6k इंटू 1 अपॉन m। सो 1 अपॉन m इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा, सो इट विल बी 2n प्लस 6k एंड 1 अपॉन m को मैं बाहर निकाल दूंगा, सो इट विल बी 3k माइनस 2n एंड 1 अपॉन m विल बी 3k माइनस 2n डिवाइडेड बाय दिस इज 6k प्लस 2n या 2n प्लस 6k। सो ये एक रिलेशनशिप मेरा निकल गया। नाउ अगर मुझे 1 अपॉन m को एलिमिनेट करना है तो उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि when I will put the value of 1 upon m this here, I will get E is equal to 2n and 1 plus 1 upon m की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, so I will get E is equal to 2n into 6k plus 2n, this will be 6k plus 2n and plus 3k minus 2n. So this 2n and this 2n will cancel each other. 6k and 3k will be 9k upon, I can take the common, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, so it will be 3k plus n. So this and this will cancel each other. So E will be 9k and n divided by n plus 3k or 3k plus n. So this is my another expression. Now there is an example. ये मेरा कोई रेक्टेंगल ब्लॉक है जिसका ये 250 mm साइड है, ये 100 mm साइड है, दिस साइड इज 80 mm. सो अलोंग द एक्स एक्सिस 480 किलोन्यूटन फोर्स लगा हुआ है, अलोंग द वाई एक्सिस 900 किलोन्यूटन फोर्स लगा हुआ है, अलोंग द जेड एक्सिस 1000 किलोन्यूटन फोर्स लगा हुआ है. सो assuming Poisson ratio as 0.25, find the in terms of modulus of velocity of the material the strain in the each direction. हर डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हुआ वो हमें निकालना है. नंबर 1, if E is equal to this, find the value of the modulus of rigidity, bulk modulus for the material of the block, and also calculate change in volume of the block to do due to loading specified above. So सबसे पहले हमें क्या निकालना है? strain in the direction of each force. So Ex, Ey and Ez वो सबसे पहले हमें निकालना है. सो स्ट्रेन इन द एनी डायरेक्शन में, स्ट्रेन जब हम निकालता है तो पहले हमें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा तीनों डायरेक्शन में, स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. सो दिस इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा दैट विल बी 480 किलो न्यूटन. इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द दिस एरिया जिस पे ये एक्ट कर रहा है. सो 100 इंटू दिस इज 100, दिस इज 80. सो 100 इंटू 80, दिस विल बी माई पी एक्स. सिमिलरली पी वाई इज इक्वल टू 900 किलो न्यूटन. क्योंकि ये टेंसाइल है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये भी टेंसाइल है इसको भी हम
पॉजिटिव लेंगे। सो 900 किलो न्यूटन न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय दिस एरिया 250 इंटू 80 एंड पी जेड इज इक्वल टू दिस इज कंप्रेसिव सो वी टेक इट नेगेटिव 1000 न्यूटन अपॉन एरिया दिस इज 80 इंटू this one. So with that I will get, ये तीनों डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेस निकाल दिया. सो टेंशन आई हैव टेकन पॉजिटिव एंड कंप्रेशन आई हैव टेकन नेगेटिव. सो जब हमारा स्ट्रेस आ जाएगा तीनों डायरेक्शन में, सो हम स्ट्रेन भी निकाल लेंगे ई एक्स ई वाई एंड ई जेड. फॉर दैट सो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी, इसकी वजह से ये एलोंगेट हो रहा है. सो दिस स्ट्रेस अपॉन ई पी एक्स अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन ई. एंड जो पी वाई है जब इसको खींचेंगे एक, तो एक्स डायरेक्शन में इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. व्हेन अप्लाइड 900 एक्स वाई डायरेक्शन में जब इसको हम टेंशन लगाएंगे, सो इस डायरेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो उसका इफेक्ट माइनस में आएगा पी वाई अपॉन ई इंटू पॉइसन रेशियो 1/m. एंड ये जो 1000 किलो न्यूटन जो जेड फोर्स लगाई ये इसको कंप्रेस कर रहा है. जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो एक्स डायरेक्शन में इलोंगेट होगा. सो पी जेड अपॉन एम ई, इसकी वजह से इलोंगेट होगा तो प्लस, इसकी वजह से शॉर्टन होगा तो माइनस. सो दिस इज माई ई एक्स. सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में ये इलोंगेट हो रहा है दैट विल बी पी वाई अपॉन ई. एंड एक्स पी एक्स में जो टेंसाइल फोर्स लगा है उसकी वजह से जब इसको इलोंगेट होगा तो वाई डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दैट विल बी पी एक्स अपॉन एम ई. एंड जेड डायरेक्शन में जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, सो उस कंप्रेशन की वजह से ये वाई डायरेक्शन में इलोंगेट होगा, तो इफेक्ट इज पॉजिटिव. तो पी जेड अपॉन एम ई. सिमिलरली ई जेड इज इक्वल टू, जेड डायरेक्शन में क्योंकि ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव को हम माइनस लेते हैं तो पी जेड अपॉन ई. एक्स की वजह से जब ये हम टेंशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में तो जेड डायरेक्शन में ये शॉर्टन होगा, दैट विल बी आल्सो माइनस. सो पी एक्स अपॉन एम ई. एंड वाई डायरेक्शन में जब हम इसको इलोंगेट करेंगे, वाई डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा तो ये फर्दर और कम होगा जेड डायरेक्शन में, दैट विल आल्सो बी पी वाई अपॉन एम ई. तो तीनों नेगेटिव रहेंगे. सो इन दैट केस जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड व्हेन आई पुट द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 0.25 पॉइसन रेशियो, आई विल गेट ई एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ई वाई इज इक्वल टू दिस वन, and Ez is equal to this one. So change in volume, that is change in volume upon V, volumetric strain is equal to तीनों का summation Ex plus Ey plus Ez. When I sum up all these three, I will get this 32.5 upon this E. E की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो I will get this one. So this is my चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी को जब हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, आई विल गेट 325 क्यूबिक mm रेज टू द पावर 3. ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम होगा, इतना चेंज इन वॉल्यूम हो गया. नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके लिए हमारे पास ई हमारे पास है, ई इज गिवन, पॉइसन रेशियो इज आल्सो गिवन. सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू, उसका फार्मूला ये होता है, E इज इक्वल टू 2n1 प्लस 1 अपॉन m. ये हमें, इसकी वैल्यू हमें पता है एंड E की वैल्यू भी पता है. तो विद दैट केस मैं n की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ.
So putting value of E is here, 1 upon here, I will get N, which is equal to 0.8 into 10 raised to the power 5. Similarly, bulk modulus is equal to, similarly E is also given, 1 upon E is given. So I can find out the value of K by putting in this equation. E is equal to 3K 1 minus 2 upon M. E is equal to 2N 1 plus 1 upon M. These are important formula, and you will find regularly objective questions GATE and ES regularly based on this formula. So another example, a bar of there is a bar having 40 mm डाया है और 500 मीटर लॉन्ग है. उस बार पे 120 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, एंड इट इज फाउंड टू स्ट्रेच द बार बाय 0.25 mm. The same bar when subjected to a torque of 1.3 kilonewton meter is found to twist through 1.92 degree. Find the value of the 4 elastic constant. 4 elastic constant कौन कौन से हैं? One is E and 1 upon M, and वन इज ब्लक मॉडुलस. सो ये मेरे 4 इलास्टिक कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है. सो ये मेरा डाटा है. सो देयर इज ए बार, ये मेरा बार है, इस पे 120 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है. सो इसका ये डाया जो है, डाया इज इक्वल टू 40 mm, लेंथ इज 500 mm. सो विद दैट, इस डाया से हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, विच इज π/4 इंटू 40 स्क्वायर. इस स्ट्रेस अगर हमें निकालना है, यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू 120 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन एरिया, π/4 इंटू 40 स्क्वायर. इससे हमारा स्ट्रेस मालूम हो जाएगा. स्ट्रेस जब हमारा मालूम हो जाएगा, सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 0.25 mm डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ 500 mm. इससे मेरा स्ट्रेन निकल आएगा. तो स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेन निकल गया. सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब मैं करूंगा, दैट विल गिव E. So this is my stress, this is my strain. So with that I can find E. So delta is PL upon AE. So this is my stress and change length upon original length. ये फार्मूला या मैं अलग से कर सकता हूँ या इसको ऐसे भी कर सकता हूँ. इससे मेरा E की वैल्यू निकल गई. नाउ जब E की वैल्यू निकल गई, then as we know, value of n is equal to as we know E is equal to 2n and 1 plus 1 upon m. So for finding the value of n, so E I know, so n की वैल्यू के लिए मुझे 1 upon m required. So Poisson ratio is also required first of all. n निकालने के लिए मुझे Poisson ratio निकालना पड़ेगा. या टॉर्क उसने दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ टॉर्क ही हैज गिवन
1.3 किलो न्यूटन मीटर है एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट भी उसने दिया हुआ. विद दैट एज वी नो T upon J is equal to n theta upon L is equal to F upon R. ये टॉर्सन का हमारा इक्वेशन होता है. T upon J is equal to n theta upon L. इसमें टॉर्क इज गिवन and J we can find out. J is polar moment of inertia. This is polar moment of inertia which is equal to pi d by 4 upon 32. This is equal to Ixx plus Iyy. So with that pi d by 4 upon 32 polar moment of inertia which is J I can find out. So pi into d is here 40 mm upon 32. With that is polar moment of inertia. Theta here is in रेडियन. इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू रेडियन में है बट यहाँ डिग्री में दिया है. सो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में. सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 एंड 1.92 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस अपॉन 180 इंटू 1.92. सो इससे मुझे रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर थीटा की वैल्यू. सो आज जब मैं इस वैल्यू यहाँ ये कोरस्पॉन्डिंग पुट करूंगा. एल इज आल्सो गिवन. एल मुझे मालूम है. एल इज 500 mm एंड थीटा मुझे मालूम है. जे मुझे मालूम है. एन टी मुझे मालूम है. सो विद दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. टी अपॉन जे इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल. दिस इज माई टॉर्क. उसको किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm एंड दिस इज माई थीटा इन रेडियन. एल दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज माई लेंथ. सो विद दैट के एन मेरी वैल्यू यहां से मिल जाएगी. सो एन इज इक्वल टू 0.772 इंटू 10⁵ आवर. सो आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ एन, एन मुझे पता चल गया, ई भी मुझे पता चल गया. सो आई कैन फाइंड आउट पॉइसन रेशियो 1 अपॉन m विद दिस इक्वेशन. ई इज इक्वल टू 2n एंड 1 प्लस 1 अपॉन m. सो ई की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की, एन की वैल्यू ये पुट की, तो इससे हम 1 अपॉन m निकाल लेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 0.288. एंड नाउ मॉडुलस, bulk modulus. So there is another equation. E is equal to 3k into 1 minus 2 upon m. जब हम E की वैल्यू यहाँ पर जो कि हमें मालूम है वो पुट करेंगे. सो E is equal to this one and 3k 1 minus 1 upon m is equal to 0.228. जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. सो विद दिस हेल्प चारों कॉन्स्टेंट मैंने निकाल लिया. So for today's class, this is done. Thank you very much. Thank you.